Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 1, crop production and management. Okay. In previous class, we completed chapter number 3. All revision that chapter we completed. Okay. Now we start in today's class chapter number 1. All revision is there. Okay. First, in this chapter, we know about the all organism need for their growth and survival. We get our food, both plant and animal also. Food required for our growth, maintenance and protection of the body. It is also needed to the repair damaged tissue. तो फूड हमारी इन सब चीजों को पूरा करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है एंड डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है. So that's why food is very necessary for us. Okay. So plants can make their own food, but animals are not. Plants अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनिमल्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. ओके. तो एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए ऑन प्लांट. Okay, so plant animal are directly and indirectly depend on the plant. But in today days, increase in human population has increased the food of production. अब food तो plants बना रहे हैं, it's okay. और animal भी food के लिए plants पे depend है. ठीक है, लेकिन human population जो है day by day क्या होती जा रही है, increase होती जा रही है. तो that's why उनकी जो demand है food production पर बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो better agriculture activities उनको फॉलो करनी पड़ेंगी. तो व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज? व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज एक्टिविटी इन अ particular sequence undertaken by farmer over a period of time to cultivate a good crop. एक गुड क्रॉप को गेट करने के लिए फार्मर जो भी एक्टिविटी कंप्लीट करता है, कंटिन्यू रखता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइजेस. ठीक है. In agriculture practices, some steps are there. We discuss about that. But first, we understand about the what is agriculture. Okay. So, what is agriculture? Agriculture is a science of. In previous, मैंने बोला था agriculture practices. Agriculture practices जो होगी वो क्या होगा बेटा? वो स्टेप्स जो फार्मर एक क्रॉप को प्रोडक्ट करने में, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड से स्टेप्स को फॉलो करता है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट्स अ एग्रीकल्चर. Agriculture is the science of practice of farming, including cultivation of the soil or growing of crops. Okay. Now, next one is when plants, main definition is what is crop. Crop are the same kind of plant grown in a very large scale. Same kind of plant grown in a large scale is called a crop. Suppose we have a field and we grow in a whole field is wheat plant. ठीक है. तो wheat, here wheat is a wheat crop. wheat को क्या बोलेंगे हम, wheat crop बोलेंगे. ओके. तो सेम काइंड के प्लांट एक लार्ज स्केल पर ग्रो होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप. ठीक है. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट सीजन. ऐसा नहीं कि wheat, राइस, मेज and soybean, groundnut, maybe fruit and vegetables crops are there. All crops grow in a only one season. ठीक है. All crops depend on different season, very well depend in a different season as they need, because हर crop को they want a different climatic condition, different temperature and different humidity, the rainfall and duration of sunlight. On the basis of season in which crops are grown, there are of a two type. देखिए, अब इन सीजन्स के बेस पे हम क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं और उसी बेस पे हम इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखिए, क्रॉप जो है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप की. फर्स्ट वन इज जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, सच एज क्लाइमेटिक कंडीशन. क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर उस टाइम का, वहाँ ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. जैसे विंटर्स में ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कंपैरिजन टू समर क्या होती है, कम होती है, और समर में सनलाइट जो है ज्यादा होती है. तो उन सब क्लाइमेटिक कंडीशन पे बेस्ड होकर हम क्रॉप को mainly we divided into a two parts. Okay. First one is Kharif and second one is Rabi crop. Which one is Kharif? That crop are grown in a rainy season. ऐसी crops जिनको हम shown करते हैं किसी which season? Rainy season में are called a Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton are Kharif. Okay. Next one is Rabi crops. The crops grown in the winter season are called a Rabi crops. ऐसी crops जो
विंटर सीजन में क्रॉप ग्रो कराई जाती है, दैट्स आर रबी क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मे बी डिफाइन में आ सकता है, व्हाट इज क्रॉप, ठीक है, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ओके। मे बी खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन खरीफ क्रॉप पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। इन रबी क्रॉप्स wheat, gram, pea, mustard and linseed, okay। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सर, अब क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजों को फॉलो करेंगे, व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वी ऑल्सो first we discuss agriculture practices, we understand this definition agriculture practices कि जो सीक्वेंस है जो फार्मर अब क्रॉप को ग्रो कराने के लिए यूज करता है, दिस वन इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो स्टेप्स हैं आपको लाइन वाइज याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो 6th स्टेप है आप 4th नंबर पे लिख रहे हो, 4th स्टेप वाला है वो आप 6th नंबर पे लिख रहे हो, तो आपके स्टेप सारे होंगे लेकिन सीक्वेंस में नहीं होंगे, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग, ओके। तो प्लीज लर्न दिस क्वेश्चन इन सीक्वेंस, ओके। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. In your question answer this question I gave some points and मैंने उसमें कहा हुआ है कि आप लोग इसको सीक्वेंस में अरेंज करें, ठीक है। तो एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको दूंगी और आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, टू लर्न ऑल द पॉइंट्स इन सीरीज वाइज, ओके। Now we discuss, I repeat that preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer. Next one is irrigation, protecting from weeds, harvesting and store. Okay. Now next one is preparation of soil. The first step of agriculture practices is preparation of soil. It is the first step of growing crops, okay. And what is in this step we discuss first step in ploughing, okay। Preparation of soil also divided into two parts, first one is ploughing and second one is leveling, okay। So in ploughing the process of loosening and turning of the soil is called a ploughing, okay। So soil को lose करना, उसको turn करना, this process is called a loosening of the soil। Why we do this process, why this process is important, okay। So maybe when we lose the soil particles, more air spaces are there, वहां पर more air space बनता है, then रूट ऑफ क्रॉप प्लांट टू ब्रीथ बेटर, जो रूट है हमारी क्रॉप प्लांट की वो क्या करती है, बेटर ब्रीथ करती है, क्योंकि उस जब सॉइल लूज हो जाएगी तो उसमें एयर पार्टिकल्स जो है, एयर जो है उन स्पेसेस में प्रॉपरली स्पेस बनाएगी और जो रूट है वो प्रॉपरली ब्रीथ करने में हेल्प कर रही है, ओके। नेक्स्ट, लूज सॉइल पार्टिकल होल्ड मोर वाटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब लूज सॉइल जो होती है उसके अंदर स्पेस होगा तो वहां पर हमारा जो वाटर है वो मे बी वहां पर काफी टाइम के लिए सरवाइव हो सकता है, ठीक है। तो दिस हेल्प द रूट टू एब्जॉर्ब, वेट वेट वेट, हाँ यस पुनीता, एक सेकेंड, पुनीता अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये जो अब हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का, मैम आप रिवीजन के बाद में हमसे मतलब इसके क्वेश्चंस पूछोगे क्या? हाँ बेटा, इस आपको बीच में भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर काफी बड़ा है, अपने पास 2 days ही है, काफी बच्चों को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी, काफी बच्चों को किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हाँ होगी। मैम, मेरे को यही पूछना था कि आप टेस्ट के तौर पे जैसे बीच बीच में पूछोगे क्या ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुनीता ओके। आप अनम्यूट ही रहिएगा, आप मुझे थोड़ा बताना, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। स्क्रीन यस शेयर मैम। हो रही है आपको, ओके। नो मैम। तो स्क्रीन शेयर हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नो मैम। नहीं, ओके, एक नाउ, यस मैम, आप शो हो रही है मैम, ओके पर बेटा, थोड़ी म्यूट मतलब हिल योरसेल्फ। रही है बार बार। अब फिक्स है, यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। यस।
ओके डन। तो हमने टू फंक्शन रीड किए कि जो लूजनिंग होती है सॉइल की वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो एयर स्पेस हो जाएगा, रूट्स प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाएंगे, वाटर होल्ड जो है प्रॉपर्ली हो पाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रूट्स एब्जॉर्व कर पाएंगे वाटर को। नेक्स्ट है लूज सॉइल हेल्प टू पेनिट्रेट डीप। अगर हमारी सॉइल जो है लूज होगी तो हमारी जो रूट है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएगी किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ओके एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड के अंदर जो वीड्स होती है उनको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। लूज सॉइल में भी मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर लूज सॉइल में ऐड करने में हेल्प होते हैं। तो ये ऑल रीजंस आर देयर। सेकंड वन इज लेवलिंग एंड फ्लोइंग इज डन बाय फ्लो। फ्लोइंग इज डन बाय फ्लो एंड हॉय। दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा अपने, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अ, उनको लूज किया जाता है किसके अंदर, फ्लो और होय के हेल्प से। ठीक है, सॉरी बेटा फोन प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट वन इज फ्लोइंग। आई थिंक इट्स क्लियर। लेवलिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने सॉइल को लूज किया है, okay, after that flow land is leveled and pressed lightly with the help of a wooden plank on iron leveler। एक आयरन लेवलर या वुडन प्लैंक के थ्रू हम उस पूरी सरफेस को क्या कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। आप सबने प्रैक्टिकल काफी बच्चों ने मोस्टली, मेरे पास में 30 to 35 इसका प्रैक्टिकल करते हुए आपका वीडियो आया था, तो मे बी यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल दिस एक्टिविटी। फर्स्ट शोइंग ऑफ सीड से पहले हमें एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड। हाउ कैन वी सेलेक्ट हेल्दी सीड्स, ओके। तो ओनली क्लीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड शुड बी सेलेक्टेड। सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड। उनको हमको हेल्दी सीड को सेपरेट करना है एंड देन उनको फंजीसाइड से ट्रीट करना है। ठीक है, तो हेल्दी सीड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट हम एक बीकर लेंगे, उसको हाफ वाटर से फिल करेंगे, then put a handful of wheat seeds in the beaker container and stir the water well and leave the beaker. After some time, we observe that some seed float on water and some seed settle down at the bottom. That seed float on the water, that means they are damaged seed because they are hollow, and some seeds are settle at the bottom, so they have a healthy seed। जो बॉटम में सारे सीड्स आ जाएंगे, हम उन्हीं सीड्स को आके अपने शोइंग में यूज करें। Okay, in showing method, two methods are there. First one is traditional method and second one is flow. Okay, showing of seed. This one is traditional. इसमें one funnel like structure होता है, ठीक है, पास डाउन द थ्रू द पाइप विद द शार्प एंड। इसके बिल्कुल एंड में एक शार्प एंड होगा। देन इस फनल के अंदर से हम सीड्स को ट्रांसफर करते रहते हैं और उस फनल की हेल्प से वो प्रॉपर जो सॉइल के अंदर जो सीड है वो शोन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी इन टुडे वी यूज दिस टाइप ऑफ सीड ड्रिल। ठीक है, उस ट्रेडिशनल टूल के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बुल्स का यूज कर रहे हैं और एक फनल यूज है उसे। ठीक है, बट इन सीड ड्रिल हैव अ मोर ट्यूब्स। एक साथ हम काफी सारे ट्यूब में काफी सारे सीड्स को ऐड कर सकते हैं, प्लस उसमें हम ट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर मैनुअल और एनिमल पावर जो है वो ज्यादा लगती है, मसल पावर ज्यादा लगती है। सीड ड्रिल में ये चीज नहीं है और फास्ट प्रोसेस है। और सीड ड्रिल की हेल्प से क्या होता है कि when we use the seed drill, it help us to the all seeds uniformly and appropriate distance and depth। जितने भी सीड है वो appropriate distance और depth में फिक्स हो जाते हैं। It ensure that seeds get covered with soil। और सीड ड्रिल में क्या होता है कि ये भी इंश्योर हो जाता है कि जितने भी सीड हैं कवर होते हैं विद सॉइल आफ्टर सोइंग। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। और बर्ड्स के थ्रू वो डैमेज भी नहीं होंगे। इट सेव टाइम एंड लेबर। ओके, तो यस क्लास, आप में से किसी को भी अभी तक के उसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन? हमने टू मेथड कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट वन इज फ्लोइंग एंड सेकंड वन इज showing of seed। In this topic we discuss about the selection of seed and showing of seed। Okay, anyone have any problem? Please raise your hand in both topic, in both topic. No one have any problem? Okay, now we move to a next point. Which one is next point after showing of seed?
नेक्स्ट वन इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और मैन्योर और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा? इसलिए होगी बिकॉज प्लांट को ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन कंप्लीट करता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? वी डिस्कस इन दिस टॉपिक, ओके। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्लांट नीड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिएंट की, ओके। और दे गेट दीज न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल. When crops are grown in the same soil again and again, the soil gets depleted and mineral nutrient we need to replenish the soil by adding nutrient back to the soil. ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें? सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए उसमें हम मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड कराते हैं और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रॉपरली करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन होगा तो जो सॉइल के अंदर जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है उसको प्रॉपर टाइम मिल जाता है उसको वापस से रीगेन करने का, ओके। तो जब हम क्रॉप को सॉइल के अंदर अगेन एंड अगेन ग्रो कराते हैं तो उस सॉइल के अंदर पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, डिप्लीटेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वी एड सम मैन्योर फर्टिलाइजर, ओके। मैन्योर, व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज अ organic substance obtained from a decomposition of plant and animal waste. जो प्लांट और एनिमल वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन होगा उससे क्या बनेगी बेटा? मैन्योर बनेगी। फार्मर डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस। फार्मर क्या करता है? जो भी प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है उसको एक पिट के अंदर ट्रांसफर करता है, उसको डिकम्पोज करता है। देन द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होता है। देन डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है उसी को हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? जब हम डिकम्पोजिशन मेथड थ्रू अ अर्थवॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो वी prepared from plant and animal waste but worms are used for decomposition. जब हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर अर्थवॉर्म को या वर्म्स को यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर, देन जो मैन्योर हमारे पास से बनेगी दैट मैन्योर इज कॉल्ड अ वर्मी कंपोस्ट, ओके। एंड नेक्स्ट वन, और मैन्योर की क्वालिटी एडवांटेज ऑफ मैन्योर में क्या आ जाएगा कि भाई एक तो फर्स्ट थिंग हम बार बार पढ़ रहे हैं, मैन्योर को क्यों ऐड किया जा रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मीन्स उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए। तो वी ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, एंड they add organic matter to the soil which improve the texture of soil. Also manure improve the texture of soil. And of course when we add the manure in the soil, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की इंक्रीज हो जाती है, ओके। और जो भी सॉइल के अंदर क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर फ्रेंडली बाय माई बैक्टीरिया होते हैं सच एज लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के अंदर, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो भी मेन्योर के अंदर प्रॉपरली ग्रो हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कहाँ पर? फैक्ट्रीज में ग्रो होते हैं, मतलब इनको प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। लेकिन इनके अंदर एक चीज क्वालिटी क्या है कंपैरिजन टू मैन्योर? इनमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। हम सपोज दोनों की सेम अमाउंट ऑफ 1 kg हम मैन्योर यूज कर रहे हैं, 1 kg हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो देन फर्टिलाइजर गिव अ मोर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट को। फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, ये सब एग्जांपल है आपके फर्टिलाइजर्स के। तो फर्टिलाइजर्स, एक तो मैन्योर हमें एक्सेस में मतलब क्वांटिटी में ज्यादा यूज करना पड़ता है फील्ड के अंदर, बट fertilizers are required in very small quantity, okay, and they easy to transport to, क्योंकि because ये ट्रांसपोर्ट करने में इजी क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजर्स इजीली बैग पैकिंग में आते हैं, इनको बस स्प्रे करना होता है, ओके। they increase the crop productivity. Farmers use fertilizers to get better yield. Why farmers use fertilizer? Because better yield मिले, better production मिले, okay, but some harmful effects are also there. First one is जब इनको वॉश किया जाता है इरिगेशन के थ्रू, तो ये जो जितना भी फर्टिलाइजर है थ्रू इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू या रेनफॉल हो जाती है, तब ये सारा जो फर्टिलाइजर है मिक्स विद
लेक वाटर, रिवर वाटर, तो वहाँ के जितने भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स हैं उन पे वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, तो मीन्स वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। और जो फर्टिलाइजर मिक्स वाटर जो होता है ना, नॉट फिट फॉर अस फॉर ड्रिंकिंग, है ना, हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है पानी पीने के लिए, तो वाटर खराब हो जाता है। तो फर्टिलाइजर फर्स्ट थिंग ये है। बीइंग पाउडरी दे डू नॉट बिंड विद, ये पाउडरी फॉर्म में होता है, लॉन्ग पीरियड तक अगर सॉइल के अंदर मिक्स रहता है तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है या फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्टिलाइजर एंड मैन्योर डिफरेंस। आप सबको पता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट मैन्योर इज अ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। Okay. Second one is fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the field. भाई मैन्योर फील्ड में ही अपन फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, ये फैक्ट्रीज में ग्रो होता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है बेटा? डेड जो प्लांट और एनिमल जो है उनको डिकम्पोजिशन से जो फर्टाइल चीज बनती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं ना। तो ह्यूमस जो है मैन्योर में बनेगा, ना कि फर्टिलाइजर्स में बनेगा। नेक्स्ट वन इज fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. Next one is manure is relatively less rich in plant nutrients. Okay, तो आपको डिफरेंस बिटवीन क्लियर हुआ, एडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हाट इज इरिगेशन, वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। एंड नाउ एनीवन हैव अ query about this chapter? Please raise your hand. Anyone have any query related to this chapter? Please raise your hand. Okay, no one have any query. So I ask you some questions. Yes, Keshwi. एक second. हाँ, yes, beta. Unmute yourself, Keshwi. Okay. Anyone, please mention some advantage of loosening of soil. आप में से किसी को भी समझ में आया है चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मे बी आप इसका आंसर दे सकते हो कि व्हाई वी डू दिस प्रोसेस लूजनिंग ऑफ सॉइल। ओनली वन स्टूडेंट, है ना। हमें प्रॉब्लम भी नहीं है और हमें आंसर भी नहीं पता है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम इससे अक्षत कुमार, हाँ जी, बोलिए बेटा। यस, रूट तक मैम सही से ऑक्सीजन पहुंच जाती है इससे। हाँ, रूट में सही से ऑक्सीजन पहुंच जाती है बिकॉज एयर स्पेसेस बन जाते हैं ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। यस मैम। सेकंड पॉइंट आता है आपको? मैम नहीं आता। यस, पवित्र व्यास। एक सेकेंड, पवित्र व्यास। यस, पवित्र व्यास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपको मैम अक्षत ने आंसर दिया, उसमें ऐड कीजिए कोई पॉइंट। मैम loosening of the soil helps the roots to penetrate deep in the soil and after this the roots help breathe easily in the soil. वेरी गुड, वेरी गुड पवित्र। एंड नेक्स्ट इज स्नेहा सुधार। म्यूट योरसेल्फ पवित्र। हाँ, यस स्नेहा। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज राहुल पुनिया। राहुल, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वी सेलेक्ट अ हेल्दी सीड। हाउ वी सेलेक्ट अ हेल्दी सीड। हाउ वी सेलेक्ट अ हेल्दी सीड। यस, पार्थ शर्मा। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। Ma'am, we can collect the healthy seed by putting some, dropping some seeds in a container with water. So those seeds which float on top of the water are not healthy and hollow seed, and those seeds which settle down at the bottom of the water are healthy seeds. ओके, डन पार्थ।
Okay. Next question is, what is the difference between sowing method में in traditional tool and seed drill? Traditional tool and seed drill. Which one is better than, and कुछ भी 2 and 3 difference आप इसमें explain करना चाहें, traditional tool and seed drill? Yes, Ishan. Yes, ma'am. In traditional tool were made in ancient time to make work easy. Nowadays, seed drill is used. It save a lot of labor and time. Very good. Okay. And next question is, what is the difference between manure and fertilizer? Difference between, पॉइंट वाइज बात करेंगे, तो एक बार अभी मैं जिसको भी अनम्यूट करूं, ओनली 1 पॉइंट आप बताना, ठीक है? ओके, यस पवन.